Hello. Hi, what's up? I'm good. How are you? I'm very well too. Thank you so much. Firstly, congratulations. विदाई वापस से स्टार्ट हो रहा है, रीरन हो रहा है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. कितना नॉस्टैल्जिक शो था. वापस देख रहे हो क्या आप ये सीरियल? This is my first show, the most important show. So obviously very excited and very happy for those जिन्होंने उसको इतना प्यार दिया, and I'm very sure they are very excited to have their favorite show back. So I'm very happy. Okay, you have done so many serials, like so many television daily soap reality show. लेकिन Okay, अगर so मैं पूछूं कोई JNSD, I will tell you, as I joined your live, you were yeah thinking yeah what is JNSD. So Jana Na Dil Se Dur was my another Star Plus show which I did like 2 years back. So that was Jana Na Dil Se Dur. Okay, so उसकी ऑन सेट अगर मैं बेस्ट मेमोरी पूछूं तो कौन सा था लाइक वो सीरियल का? कौन सा what? Sorry. ऑन सेट बेस्ट मेमोरी. On set best memory. Yeah. You're talking about JNSD, Jana Na Dil Se Dur. Okay, so best memory, obviously, as अभी यहाँ पे वो what's her name, Manthi came to meet me on the sets. That was so sweet. Of course, that was the best one. And और बहुत सारी memories है JNSD की, जैसे कि Shashank Vyas was opposite me. And the entire cast was so much fun to work with, and they were so positive, so nice, and the production house was so good. So yeah, had amazing memories. Sir, you have done so many reality shows, so many television, and लेकिन अगर मैं ऐसे पूछूं कि particularly कोई एक serial ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब है और एक reality show, तो वो दोनों कौन से हैं? Bidai is definitely my first answer because वो तो by default है ही, उसकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ जो भी कुछ हूँ. And Ram Milai Jodi was also very close to my heart. That was my second show on Zee TV, and was super fun because the character was very close to my heart. As it was like I can say that I can relate to the character a lot. She was jolly, she was spontaneous, she would say anything. आपकी जो face है वो half दिख रहा है, so I think you should sit maybe, or you should just go a little far. Hold on. Perfect. Yes, now I can see you. Yeah. Well, Yes. yeah, one best reality show. Best reality show was Big Boss. Because that show really changes the entire game. So Hold on. One second. Let me just fix it. Yeah, quick. Yeah. There you go. Sorry. Big Boss. All right. So apart from that, during this lockdown period, what are you doing these days? Apart from like we know like there are lots of songs in pipeline, but उसके अलावा और कैसे आप दिन निकाल रहे हो? क्या कुछ आप कोई वेब सीरीज देख रहे हो या फिर क्या कुछ आप कर रहे हो? How you are spending your time? Almost Netflix तो पूरा मैं like I really finished Netflix watching, and these days I'm learning cooking, and I know cooking very well, but learning different dishes, trying different dishes, and working on towards meditation and or skills, like I'm trying to learn different things, and I've just recently started learning Arabic on Duolingo. So yeah. Okay, so since like you have turned in singer as a singer now, so you have started this with Black-Hearted song, right? So आगे बढ़ने से पहले उसकी कुछ लाइन हो जाए. कहंदा ये ज़माना मैनू बिगड़ा, मैनू पल पल जज करदा, मेरी रूह विच वसदी मोहब्बत, ते मैनू ब्लैक हार्टेड कहंदा, लागी टोक बेहिसाब जानी कैसी, लागी टोक बेहिसाब जानी कैसी, मेरी साह तो भी तंग कर दे, कहंदा ये ज़माना मैनू बिगड़ा,
मैनू पल पल जज करदा. So this is that heart. Great. And well, usually लोग पहले गाना गाते हैं and then टेलीविजन में आते हैं, मूवी शोज करते हैं, मूवीज करते हैं, but you are doing आपके साथ उल्टा हो रहा है सारी चीजें. See, I don't know. It was never a plan as such that I wanted to get into singing and like leave acting or anything like that. This is not the plan. I believe that I can play any character very well, and I'm a very good actor. I believe that I can play any character very well, and acting is my first thing. That's me. I'm an actor. But singing is something which gives me immense happiness, and I just love singing. It's my passion. I love creating stuff. I love writing. I love writing the feelings where I feel that it should be delivered to the guys out there. So yeah, so that's it. Okay, so who's your inspiration behind your singing, and like whom you admire the most? See, my inspiration has always been Jennifer Lopez. I just love her, the way she is, the way she does everything, all about her. I just love her. So she's my inspiration, always. And she will be my inspiration, and I really wish to be like her. Okay, so your upcoming song, we have seen the poster. So tell us like behind the scenes, like how was it? So yeah, Chhatke Na Ja is very close to my heart. Again, it's a Punjabi song. It's a sad song, and yeah, I've worked a lot on this song, the story, and Ashmit Patel is opposite me. I have asked him to do the song, and he's been very kind. So yes, अभी जब गाना बाहर आएगा, then I can share more. Okay. So alright. So अभी तो आप नहीं शेयर कर सकते. But अगर मैं पूछूं, जैसे कि we have seen you in like obviously Daily Soap, Big Boss में देखा था, तो ये सीजन का Big Boss काफी ज्यादा हाइप हुआ था. तो आपने ये सीजन का Big Boss फॉलो किया था? Have you seen it? नहीं देखा था यार. I didn't watch the Big Boss. Okay. आपने आपका सीजन Big Boss देखा था? नहीं यार, कैसे देखूंगी, तब तो मैं अंदर थी. यूजुअली निकलने के बाद हर कोई देखता है अपना सीजन. सो आपने अभी तक नहीं देखा? नहीं, बट मैंने नहीं देखा. ओके, अगर आप ये सीजन में जाते लाइक बिग बॉस के कंटेस्टेंट में, तो आप किसकी टीम में जाते? सिद्धार्थ और आसन? मैंने फॉलो ही नहीं किया बिग बॉस इस बार का, वही तो मैं आपको बता रही हूँ. आपने छोटे ऑन आईजीटीवी और यहाँ वहाँ बिकॉज बहुत ज्यादा ट्रेंड था. हाँ, I know these people that they were there in Big Boss, but I don't know much about what happened, what has happened, and I don't know, so I can't really say anything right now. Okay, and then apart from that, काफी टाइम से आप like डेली सोप में हम आपको मिस कर रहे हैं. So when can we see you next? क्या like after singing वापस से कोई कमबैक करने का इरादा है? और like डेली सोप पे लॉकडाउन खत्म होने के बाद let's see, you never know. That means something is there. Let's see after lockdown, like once the lockdown gets over. Okay, so अगर मैं पूछूं आपने अभी की like ये ईयर की like मूवीज की बात करूं, तो कौन सी ऐसी मूवी देखी आपने जिससे आप बहुत इंस्पायर हुए एंड यू फील कि ऐसा कुछ? आपको बताऊं, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो मैं मूवीज जब भी देखती हूँ तो वाइल वॉचिंग इट ऑल्सो मुझे नाम का ध्यान नहीं होता कि कौन सी मूवी देख रही हूँ मैं. शोज भी पूरे खत्म हो जाते हैं, मुझे रियलाइज होता है वो जिसका नाम क्या था जो मैंने पूरा देख लिया. सो मैं नाम में तो बहुत बेकार हूँ. बट मुझे रोम कॉम पसंद है, मुझे साई-फाई मूवीज बहुत पसंद है. सो अगर कहें तो 100 was the show which was my favorite, and अभी तक I can't get out of that show. 100 on Netflix, तो वो शो मुझे बहुत ही पसंद था. वैम्पायर डायरीज के सारे सीक्वल्स मैंने खत्म कर दिए हैं, ओरिजिनल्स. देन लेगेसी अभी आया है, तो लेगेसी नाउ आई हैव टू आई स्टार्टेड लाइक आई वॉच्ड 2 episodes. I'm going to now eat that show totally. Okay, Sarah, do you believe like इंडस्ट्री में nepotism है? Because ये बहुत बड़ा मुद्दा बीच में हाईलाइट हुआ था, अभी फिलहाल चला गया. But what is your take? I just want to know from you कि like जैसे about nepotism, what do you think? This like star kid और ये सारी चीजें वो होता है या फिर टैलेंट बेसिक होना चाहिए,
वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर नेपोटिज्म होता है कि इजीली ब्रेक मिल जाता इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्टार किड्स तो खैर, अब वो अगर बच्चा पैदा होता है जिस घर में वो अपना बिजनेस संभालता है, तो यू नो देयर यू डोंट पॉइंट आउट कि ये बच्चा बिजनेस कैसे कर सकता है अपने फादर का, बिकॉज ये नहीं कर सकता है बच्चा, तो आप नहीं पॉइंट आउट करते हो ना वहाँ पे। तो इट्स द सेम ओवर हियर आल्सो, इट्स द सेम बिजनेस। जो बच्चे अगर स्टार किड हैं और अगर उनको मिल रहा है, सो डेफिनेटली इट्स देयर लक एंड वी आर नोबडी टू पॉइंट आउट, दैट्स देयर लक कंप्लीटली। और अब वो आगे आपको, हम नॉर्मल सब लोगों को कैसे पसंद आते हैं वो डिपेंड करता है। तो अगर वो बहुत अच्छे होते हैं तो वो बहुत जबरदस्त सभी को पसंद आते हैं, अगर कहीं अच्छा नहीं कर रहे होते हैं तो सो यू नो इट्स कंप्लीटली पब्लिक्स चॉइस। तो इसमें आप यू कैन पॉइंट योर फिंगर आउट के स्टार किड है तो उसको फिल्म मिल गई, तो उनको तो मिलना ही है बाय डिफॉल्ट। राइट, ये चीजें तो आपने सही कही। अपार्ट फ्रॉम दैट, उनको क्या टिप्स देना चाहते हो जो बर्डिंग एक्टर्स है या फिर जो यू नो अपने इनिशियल डेज पे जो आना चाहते हैं, उनके लिए कितना इजी या डिफिकल्ट ये होगा? मेहनत करते रहो, और आज की डेट में आपको एक ब्रेक की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज्यादा ह्यूज है कि यहाँ पे अगर आप में टैलेंट है और अगर आप शोकेस करते हो अपना टैलेंट, तो डेफिनेटली आपको जो पब्लिक है वो स्टार बना ही देती है। सो इट्स वेरी फेयर नाउ, सो यू नो जस्ट कीप doing hard work and believe in yourself and be positive, and inshallah what you want in life you will definitely get it. Okay, अभी तक आपने इतने काम किए हैं, एक ऐसा शो जो आपके बहुत, जैसे कि आपने कहा कि दिल के करीब है, विदाई, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर मैं पूछूंगी जो बहुत लाइक बहुत रिजेंबल हुआ और एक ऐसा जो बहुत ही ऑपोजिट था आपके। मैंने आपको बताया राम मिलाई जोड़ी was the character, Mona was a character which was very close to my heart and very much alike, and जो कैरेक्टर मैं नहीं बिल्कुल भी मतलब सोच सकती थी वो है नागिन का कैरेक्टर which I played in ससुराल सिमर का माया। सो वो नागिन का कैरेक्टर था, तो ऑब्वियसली I had to play a नागिन। ओके, कोई ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर या फिर आपका लाइक कोई जॉनर है जो वो लव या फिर ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ सोचा है, लाइक समथिंग लाइक दैट? जो मेरे पास आता है लाइक मैं ऐसे कुछ सोच के नहीं रखती कि ये जॉनर है, ये कैरेक्टर है जो मुझे प्ले करना है। जो मेरे पास आता है, अगर मुझे इंटरेस्टिंग लगता है और मुझे बहुत जबरदस्त लगता है, टेक इट अप एंड आई रियली वर्क हार्ड टुवर्ड्स यू नो प्लेइंग दैट कैरेक्टर नाइसली। सो देयर इज नो such genre, but yeah, I like playing little like supernatural characters. I love playing such characters. Oh, great. All right. And also, Sarah, I would love to know कि you know आजकल सोशल मीडिया कितना ज्यादा एडवांस हो गया, ये तो हम सब देखते हैं, लेकिन एक वो पॉइंट आता है जब यू नो ऑब्वियसली बीइंग अ सेलिब्रिटी या फिर पॉपुलर होने के दोनों कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, देयर इज पॉजिटिव एंड देयर इज नेगेटिव एज वेल। तो जब भी ट्रोलर होती है, लोग ट्रोल करते हैं, नेगेटिव आती है, वो क्रिटिसिज्म कितनी अफेक्ट करती है बीइंग अ सेलिब्रिटी एंड हाउ यू डील विद इट? आई जस्ट फील सैड फॉर दोज जो कि इस तरह गलत कमेंट्स करते हैं। मतलब उनका बैकग्राउंड क्या होता है, वो खुद क्या होते हैं, तभी वो इस तरह की बातें करते होते हैं। अगर वो लोग सच में उनमें दिमाग हो या सच में वो लोग उन लोगों में तमीज हो या उन्हें कुछ अच्छा सीखा हो, तो वो कभी भी गलत चीजें नहीं लिखेंगे किसी को भी, वो गलत बातें नहीं करेंगे। सो अगर आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं देखो, और अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो जस्ट यू नो डोंट, बट स्टिल दे विल राइट बिकॉज दे have nothing else to say but bad, so they're negative people. So I feel that we should just not consider them at all and just move on in life. 10 बातें करते हैं, it depends, और आप पे वो होता है कि आप किस चीज को अफेक्ट होने दे रहे हो। So it doesn't really matter to me anymore now. Earlier it used to affect me a lot. I used to get upset, I used to get sad, but then with time it's like I feel sad for them and I feel sorry for those people. Walaikum salam everyone, hi everyone, hello. Yes. Okay, so tell me, ये ईद आप कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो? बिकॉज आई एम श्योर हर टाइम जब ईद आती है तो बहुत ही अच्छे से जश्न मनाते हैं, लेकिन ये ईद की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो इतना सा लॉकडाउन और ईद, मैं ये कहूँगी कि ये ईद सिर्फ फैमिली के साथ ही होने वाली है। यहाँ पे आप ना बाहर जा सकते। ईद तो त्योहार ही होता है एक दूसरे के घर जाने का, एक दूसरे से मिलने का, बट इस बार आई थिंक हम वीडियो कॉल्स पे ईद मनाएंगे।
ओके, सब फ्रेंड्स की अगर बात करो तो सबसे ज्यादा कौन से लाइक ऑन स्क्रीन फ्रेंड्स को आप मिस करो टेलीविजन से टीवी के स्टार्स को? Angad Prasija, I miss him a lot. He's my best friend, and I spend the best time with him. Whenever we work together, whenever we meet, we have the best time together. So I really miss him. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप नमाज पढ़ रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और इफ्तारी और ये सारी चीजें के बारे में पूछ रहे हैं कि आप कैसे Yes, क्या कर रहे हो? I belong to a Muslim family, so obviously these all things are definitely there. बाकी रोजे कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी मैं अपने रिलीजन को लेके करती हूँ या अपने खुदा के लिए करती हूँ, वो मैं बिलीव करती हूँ वो मेरे और मेरे खुदा के बीच की बात है. उसमें मुझे किसी थर्ड पर्सन को आंसर देने की जरूरत नहीं है कि व्हाट आई एम डूइंग. यस, आई डेफिनेटली फॉलो, बट अब क्या, कैसे, कितने रोजे क्या किए, वो सब मैं जवाब खुदा को दूंगी. मेरा खुदा एक ही है. ओके, वेल जैसे कि अभी आपने कहा यू हैव स्टार्टेड सिंगिंग, तो अब आपने अभी इतने सारे गाने किए हैं, लेकिन अभी भी कौन सा ऐसा गाना है जो आपके दिल के करीब है, आपका पर्सनल गाना? हश, जो मैंने अभी भी रिलीज किया है एक महीने पहले ड्यूरिंग लॉकडाउन ओनली. So that's very close to me. It's basically the feeling of a girl that जब एक relationship, एक marriage, एक relationship जब थोड़ी पुरानी हो जाती है तो जो लड़कियों का तो जो affection होता है वो बढ़ता ही रहता है, but ज़्यादातर the character of a guy is that they change with time, and it's not the same thrill, you know, वो मिस होता है कहीं ना कहीं. तो ये गाना उनके लिए मैंने बनाया है. ओके, कौन सा ऐसा 80s या 90s का सॉन्ग है जिसको अगर आपको रिक्रिएट करने का मौका मिले तो फिर यू विल लव टू रिक्रिएट? अजीब दास्तां है. ओके, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ लाइन हो जाए उसके. I knew it's coming. अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम. मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए. अजीब दास्तां है ये. ओके, बॉलीवुड का ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आजकल आप सुन रहे हो? आजकल मैं अपना नया गाना बना रही हूँ कॉल्ड शुक्रान. तो ज्यादातर मैं वही गुनगुनाती रहती हूँ, उसी की धुन पे काम कर रही हूँ, तो मैं वही गुनगुनाती रहती हूँ. तो ऑनेस्टली अभी मैं फिलहाल अपने गाने को बहुत ज्यादा. ओके, सो बीइंग अ सिंगर, एक गाना अगर मैं बोलूं कंप्लीट करने के लिए तो कितना टाइम लगता है? कभी कभी एक गाना जस्ट आधे घंटे में कंप्लीट हो सकता है, बट कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी, इफ यू वांट टू ऐड ऑन सम डिफरेंट यू नो डिफरेंट ट्यून, और यू वांट टू क्रिएट समथिंग रियली डिफरेंट, सो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है. जैसे शुक्रान में जो गाना मेरा मैं बना रही हूँ अभी, उसमें काफी टाइम लग रहा है, बिकॉज समटाइम्स यू नो धुन के साथ लिरिक्स नहीं जाते, कभी लिरिक्स के साथ धुन नहीं जाती. सो इट्स लाइक यू हैव टू रियली वर्क हार्ड. ओके, और अगर मैं पूछूं कि आपको किसी एक्टर के साथ सपोज गाने में लेके आपको गाना बनाना है, तो कौन से एक्टर को आप लेना चाहोगे? अंगद. ओके, और बॉलीवुड एक्टर की बात करूं तो कौन सा लाइक टेलीविजन बॉलीवुड सेलिब्रिटी होगा? तो बॉलीवुड ऋतिक रोशन इज माय फेवरेट. ओके ओके, ऑलराइट. एंड इसके अलावा बहुत सारे जो नीचे आपको बिग लाइक दे आर योर बिग फैन लविंग योर सॉन्ग और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं. Comments, thank you Manti, thank you Ellie, and I love all of you guys. Thank you so much. ओके, एंड इस बीच में पूछना कि हाँ, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग? तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचान निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आचान निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आचान निकला.
गली में आचा निकला, गली में आचा निकला, तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आचा निकला। लवली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सारा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने आके ड्यूरिंग दिस कोरोना के ऊपर कोई गाने बनाए हैं, एंड कुछ ना कुछ उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया। बहुत सारे टेलीविजन के साथ में आए। I have also made one song उम्मीद बाकी है with Z and with Seesaw Entertainment, असलम खान के साथ बनाया, जिसमें काफी सारे सेलिब्रिटीज थे, मैंने उसमें गाया भी है। ओह, So yeah. तो क्या है उसकी लाइन जो आपने गाए हैं, एंड लाइक हाउ यू एसोसिएटेड विद द सॉन्ग स्पेसिफिकली? I sung it. I am associated with Aslam Khan, who's a director and an actor, and it's like रास्ता मिल ही जाएगा, एक उम्मीद काफी है, ये सफर मंजिल हाँ पाएगा, एक उम्मीद काफी है, यही उम्मीद रोशनी है जो रहे रा 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 रा। So it's like that. Okay, and your first serial अगर मैं बात करूँ विदाई की, विदाई बेसिकली रेसिज्म के ऊपर, लाइक काला दिख रहे हो, फिर से आपकी शक्ल नहीं दिख रही है, so you can just हाँ। सो अगर मैं विदाई की बात करूँ तो विदाई वाज अगेंस्ट लाइक रेसिज्म, वो थोड़ा लाइक गोरे और काला इनके बीच में था डिफरेंस। तो डू यू थिंक कि आपने वो इतने साल पहले किया था, लेकिन आजकल फिर भी इंडस्ट्री थोड़ी वैसी है, या फिर डू यू थिंक कि अभी चेंज हो चुका है? I don't know. I find dusky people really hot, and I really love Parul's color, and I really love. She looks so nice and so beautiful. So मेरे दिमाग में तो ऐसा कोई वो नहीं है, तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं। बाकी इंडस्ट्री के दिमाग में क्या है, I don't feel it's the same because you see we have a lot of celebrities जो कि dusky हैं, and they are doing pretty well and so good. So ऑल्सो हाल ही में हमने जब शर्लिन का इंटरव्यू किया था, शर्लिन चोपड़ा ने उन्होंने कहा था बॉलीवुड में डिनर करके कोड वर्ड होता है फॉर कास्टिंग काउच। तो आपके साथ कभी ऐसे कुछ हुआ है, लाइक हैव यू बीन? ऐसा अल्लाह का शुक्र कभी नहीं हुआ, ना होगा। लवली, दैट्स ग्रेट। एंड इसके अलावा भी लाइक बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी एज अ सिंगर भी बनना है उनको, तो गाने कैसे प्रैक्टिस की, रियाज आप कितना करते हो, क्या कुछ आप उनको एडवाइस देना चाहते हो? यही कहूंगी, एवरी डे रियाज इज इम्पोर्टेंट, एंड टू लव योर ओन वॉइस फर्स्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट। सो आई थिंक हर जगह यही चीज होती है, लागू होती है कि कोई भी चीज आप करना चाहते हो या लोगों को चाहते हो कि वो आपसे प्यार करें, तो पहले आपको अपने आप को प्यार करना बहुत इम्पोर्टेंट है, then only you can ask. So I believe that practice and practice makes a man perfect. ऑलराइट, एंड वेल जाने से पहले क्या कुछ आप आपके फैंस को कोई मैसेज देना चाहते हो, या क्या कुछ आप उनको कहना चाहते हो, और कैसे मोटिवेट करना चाहते हो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? मैं यही कहूंगी that thank you for your love guys. I love you a lot and you guys mean a lot to me. Your love, your praises, your positivity really means a lot to me. Thank you so much. Keep it up and keep watching my shows and keep watching my songs and share it. And God bless you. Be safe. Do not get out of your house and follow the rules. जो भी गवर्नमेंट हमारी बता रही है, प्लीज उसे बहुत ध्यान से फॉलो करें and be safe and love you. Thank you. ऑलराइट, एंड जाने से पहले एक बार एडवांस ईद के लिए विश हो जाए फॉर ऑल योर फैंस। वेल, ईद के लिए विश के लिए भी टाइम है, अभी तो रमजान ही चल रहे हैं, तो रमजान सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, और ईद के लिए मैं विशेस ईद पे दूंगी because I'm not going anywhere, I'm here. ऑलराइट, थैंक यू सो मच सारा फॉर जॉइनिंग अस, एंड आई होप कि आपका गाना जल्दी बाहर आए और हम सब उसे देखे। वी आर ऑल आर वेटिंग फॉर योर ऑल। Please watch my song Hush also and tell everybody to listen to the track and you also let me know how you like it. All right. Okay. Thank you so much, Okay, Sarah, bye. for joining us. Thank you. Bye bye.